اور خبر تفصیل سے وادی کشمیر میں آج ہڑتال رہی۔ ضلع پلوامہ کے سرنو علاقے میں کل ہوئی عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ علیحدگی پسندوں کے مشترکہ گروپ نے ہڑتال کی کال دی تھی۔ ہڑتال کی وجہ سے سری نگر سمیت وادی کے بیشتر علاقوں میں دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے بند رہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کی نقل و حمل بھی متاثر رہی۔ سری نگر شہر کے چند علاقوں میں کسی حد تک نجی گاڑیوں کی نقل و حمل دیکھی گئی۔ اس بیچ سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے۔ سری نگر کے چند علاقوں میں پابندیاں رہیں۔ امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاط کے طور پر یہ اقدام کیا گیا تھا۔ حریت کانفرنس کے دونوں گروپوں کے چیئرمین میرواز عمر فاروق اور سید علی شاہ گیلانی اپنے اپنے گھروں میں نظر بند رہے۔ کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند رہی۔ ریل سروس کو بھی احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن میں سیکیورٹی کے معقول انتظامات رہے۔ ضلع پلوامہ کے سرنو علاقے میں گزشتہ روز عام شہریوں کی ہلاکت کے بعد آج قصبہ پلوامہ میں بندشیں عائد رہی۔ قصبے کو آنے اور جانے والے سبھی راستوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے حساس مقامات پر پولیس اور سی آر پی ایف کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے قصبہ پلوامہ میں عام زندگی کافی متاثر ہوئی۔ ادھر ضلع پلوامہ کے مختلف مقامات پر پولیس اور سی آر پی ایف کی جانب سے خصوصی ناکے قائم کیے گئے تھے۔ ملنگ پورہ علاقے میں پولیس نے نیوز 18 نمائندوں کو بھی پلوامہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز سرنو پلوامہ میں انکاؤنٹر کے دوران فورسز اور مشتعل افراد کے درمیان ہوئی پرتشدد جھڑپوں میں 7 عام شہریوں کی موت ہوئی تھی۔ درجنوں دیگر زخمی بھی ہوئے تھے۔ پلوامہ میں عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف وادی چناب کے مختلف علاقوں میں بند رہا۔ سیرت کمیٹی ڈوڈا کی کال پر ڈوڈا ٹاؤن میں تمام دکانیں اور دیگر تجارتی مراکز بند رہے اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں سے غائب رہا۔ لوگوں نے عام شہریوں کی ہلاکت کو افسوسناک قرار دیا۔ گندو بھیلسا اور بدروا میں بھی عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف ہڑتال رہی۔ انجمن اسلامیہ کے بینر تلے بھیلسا میں کچھ لوگوں نے پلوامہ ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے ان ہلاکتوں کی مذمت کی۔ ادھر کشتواڑ میں بھی پلوامہ ہلاکتوں کے خلاف ہڑتال رہی۔ تمام دکانیں بند رہی۔ جامع مسجد کشتواڑ کے امام فاروق احمد کچلو کی صدارت میں منعقدہ اجلاس کے بعد مرکزی مجلس شورا کمیٹی نے بند کی کال دی تھی۔ فاروق احمد کچلو نے پلوامہ میں معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کی شدید مذمت کی اور مہلوکین کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ عوامی اتحاد پارٹی کے صدر اور سابق رکن اسمبلی لنگیٹ انجینئر عبدالرشید نے راج باغ سے ایک احتجاجی مارچ نکالا۔ انہوں نے سونوار میں قائم یو این ملٹری آبزرورز گروپ برائے ہند پاک کے دفتر تک مارچ نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے وہاں جانے سے روک دیا۔ پولیس نے رشید کو ان کے کئی حامیوں سمیت حراست میں لیا۔ انجینئر رشید کل سرنو پلوامہ میں ہوئی عام شہریوں کی ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ان کا الزام ہے کہ حفاظتی عملہ ایس او پیز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مارچ سے قبل رشید نے میڈیا سے بات کی۔ جو قتل عام ہوا، جو یہاں کا معمول بن چکا ہے، ہم یہاں سے اقوام متحدہ کے دفتر سونوار تک جائیں گے۔ دنیا کے ضمیر کو جگانے کے لیے ہم یہاں سے اقوام متحدہ کے دفتر تک مارچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سرنو پلوامہ میں مارے گئے 7 عام شہریوں کے آبائی علاقوں میں غم و ماتم کا ماحول ہے۔ لواحقین انصاف کی مانگ کر رہے ہیں۔ مارے گئے شہریوں میں ضلع پلوامہ کے کریم آباد سے تعلق رکھنے والا 33 سالہ عابد حسین بھی ہے۔ عابد MBA ڈگری یافتہ تھا۔ لواحقین کے مطابق عابد انکاؤنٹر کے دوران اپنے میوہ باغات میں شاخ تراشی کا کام کر رہا تھا۔ اس دوران وہ مبینہ طور پر فورسز کی گولی کا شکار ہو گیا۔ عابد کی ہلاکت سے کریم آباد کی پوری آبادی ماتم میں ڈوب گئی ہے۔ وہ اپنے پیچھے انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی اپنی بیوہ اور 3 ماہ کی بچی چھوڑ گیا ہے۔ عابد کی طرح ہی دیگر 6 مہلوکین کے آبائی علاقوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ متاثرہ کنبوں نے انصاف کی مانگ کی ہے۔ اس دوران لوگوں نے وادی میں جاری خون خرابہ بند کرنے پر زور دیا ہے۔ Something happened, then I must come back. There are lots of people. My husband already died. I don't know anything. I said, don't go. You
always go to field only, not going to enter on the side. फिर उन्होंने वो जो शेलिंग वेलिंग कर रहे थे उन्होंने उससे हटकर इन्होंने सीधा टारगेट फायर किया, तो इस टारगेट फायर में ये भी शहीद हुआ और एक और जवान भी हमारे गांव का जख्मी हो गया। और आसपास का ये गांव है खारपोरा, तो वहाँ का भी एक लड़का शहीद हो गया। हम इंसाफ चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि मतलब सिविलियन किलिंग इस तरह हो रही हैं, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए और इस तरह नहीं कि अंधाधुंध वो गोलियां चलाए, ये गलत पॉलिसी है। तो इनसे बात करनी चाहिए, क्या है लोगों की क्या डिमांड है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने पुलवामा में आम शहरियों की हलाकत के वाक़े पर दुख का इजहार किया। तारेगामी ने कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। अलका सानेहा एक दर्दनाक कहानी के एक और कड़ी है। हमारे साथ बच्चे जवान बेवक्त मौत के शिकार हुए, मारे गए उन हाथों से जिनके बारे में ये तवक्को है कि उनको तैनात किया गया है कश्मीर में लोगों को सलामती देने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। एक ही सवाल हम कर लेंगे और एक ही जवाब चाहेंगे कि जो अपने ही लोगों को मारें, क्या उनके लिए कानून नहीं है? कानून के ताबे रहकर कार्रवाई नहीं, कानून के दायरे के अंदर क्या उन्हें पूछा नहीं जा सकता है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है? डिमार्केशन की कोई लाइन है? फिर आपको संभालने की भी जिम्मेदारी है। बार बार मना करने के बावजूद भी अगर आप फिर उनको संभालेंगे नहीं, यह आपकी कमी है। आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये नाजुक सूरत हाल में भी आप कानून के दायरे के अंदर काम करें। और यही हमारा आईन कहता है, यही हमारा कानून कहता है, यही हमारी रीत रवायत कहती है। हम तो ये नहीं चाहेंगे कि आज इंक्वायरी हो, कई इंक्वायरियाँ हुई हैं आज तक और कोई फ़ायदा हुआ नहीं। हम ये चाहते हैं कि अगर वाकई वो कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, वो एक ही मैसेज है कि वहाँ शहरी मरे तो हमें तकलीफ़ है, वहाँ फौजी मरे तो तकलीफ़ है, वहाँ और कोई नौजवान मरे तो तकलीफ़ है। ये मैसेज मिलना चाहिए और ये मैसेज तब मिलेगा जब हर एक को कानून के सामने जवाबदेह बनाया जाएगा। जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साउथ जोन के सदर बशीर वीरी ने पुलवामा में आम शहरियों की हलाकत के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। बशीर वीरी ने कहा कि अगर कश्मीर मसले को हल करना है तो हुकूमत को पाकिस्तान के साथ साथ मिलिटेंटों से भी बातचीत करनी चाहिए। ये तो शॉकिंग है। याद दिलाना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कहा था हमें कश्मीरियों को गले लगाना है, गाली नहीं देना है। क्या हुआ उस बात का? कहाँ पहुँचा दी इन्होंने सिचुएशन? ये एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल है। एडमिनिस्ट्रेशन को किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। जहाँ लोग तरस रहे हैं राशन, पानी, बिजली के लिए, वहाँ दूसरी तरफ मारदाड़ का बाज़ार इन्होंने गर्म किया है। इसको जल्द अज जल्द रोकना चाहिए और कल जो वाक़या वहाँ पे हुआ इसकी हाई तहकीकात होनी चाहिए। ये सिचुएशन को इस हद तक किसने लाया, इस पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। ये जो बैठे दिल्ली से लेके यहाँ तक 56 इंच का सीना दिखाते हैं, क्या यही है? एक तरफ से कहती है हमारे कश्मीर के बच्चे हैं जो अपने राह से बिखर गए हैं, जो गलत रास्ता इख्तियार। अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों की तरह पेश आइए ना। फिर गोलियां कैसे आप बरसा रहे हैं उन पे? हर एक के साथ बात करनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात करनी चाहिए, हुर्रियत के साथ बात करनी चाहिए, मिलिटेंटों के साथ बात करनी चाहिए, बात पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए। उसके सिवा कोई चारा नहीं। वाजपेयी जी ने 2000 में उनके साथ बात की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम सेक्रेटरी उनके साथ बात करने आया। उसके बाद वहाँ रमज़ान सीज़ फायर हुआ। आज भी इस तरह के रिकन्सिलेटरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। पुलवामा एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए जवान एस किशन सिंह को फौज ने खराज अक़ीदत पेश किया। चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट और फौज के दीगर आला अफसरान ने शहीद जवान को खराज अक़ीदत पेश किया। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। पुलवामा के सिरनों में कल हुए इनकाउंटर के मौके पर एस किशन सिंह गोली लगने से जख्मी हो गए थे। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जख्मों से जानबर न हो सके। शहीद जवान का ताल्लुक राजस्थान के रत्नागढ़ तहसील से था।
فوج کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد ایس کشن سنگھ کی لاش کو ان کے آبائی مقام روانہ کیا گیا۔ جموں کشمیر ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے جہاں اعلیٰ افسران یا عہدیداروں کی جانب سے خواتین کو جنسی ہراسانی سے بچانے سے متعلق سخت قانون نئی ترامیم کے ساتھ لاگو ہوا ہے۔ ریاستی انتظامیہ کے اس اقدام کی ستائش کی جا رہی ہے، ساتھ ہی اس پر سختی سے نفاذ پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ اعداد و شمار کے مطابق ریاست جموں کشمیر میں خواتین کے خلاف جرائم کافی بڑھ گئے ہیں۔ ان جرائم میں جنسی استحصال کے واقعات بھی شامل ہیں۔ خواتین سے متعلق جرائم خاص کر جنسی استحصال کو روکنے کے لیے موجودہ قانون میں ترمیم کر کے گورنر انتظامیہ نے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل کے ذریعے ایک سخت قانون عمل میں لانے کو منظوری دی ہے۔ خواتین نے گورنر انتظامیہ کے اس اقدام کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے سخت قانون سے سرکاری یا نجی دفاتر میں کام کرنے والی خواتین میں تحفظ کا احساس پیدا ہوگا۔ میں اس کو بہت ہی اپریشیٹ کرتی ہوں۔ ہمارا کام کرنا جہاں پہ بھی ایک انسیکیورٹی مہیلاؤں کو رہتی ہے، یہ جو قدم ہے ہم کام کریں گے، لیکن اس سے ہماری جو ورکنگ ایفیشنسی ہے 110% بڑھ جاتی ہے، تو ہم بھی بنا ڈرے یا بنا ہیزیٹیٹ کیے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ انہینس ہوگا ان کا ورکنگ ایفیشنسی ہوگی، اور جب سیف فیل کریں گی تو ان کو ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی لیٹ آورس بھی ورک کرنا پڑتا ہے، تو مطلب ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، کبھی نہیں پریفر کریں گے، یا پھر مطلب سیف نہیں لگتا ہمیں ماحول۔ تو جب یہ ایکٹ پاس ہوگا تو ہمیں پتہ ہے مطلب کوئی بھی ہم ہر طرح سے سیف ہیں، لیٹ ورکنگ آورز میں بھی کام کر سکیں گے۔ اس قانون کو سختی سے لاگو کرنے پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ خواتین بلا خوف و خطرہ اپنی زندگی گزار سکے۔ بل پاس ہونے سے ضروری ہے کہ ان کی لوگوں کی مانسکتا کو بدلا جائے۔ تو اگر یہ بل اپلیکیبل ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن صحیح روپ سے ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ جتنے بھی دفتروں میں کاریہ کرتا ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، کرمچاری ہیں، وہ سبھی کرمچاریوں کی مانسکتا پر سیدھا پربھاؤ پڑے گا، اور جو ہی کرمچاریوں کی مانسکتا پر پربھاؤ پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کا کام کرنا اور بھی سجگ ہو جائے گا اور بھی سرل ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ریاست میں یہ قانون پہلے سے ہی موجود ہے، تاہم اس پر سختی سے نفاذ نہ کرنے سے خواتین سے متعلق جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اس قانون کو نئی ترمیم کے ساتھ لاگو کیا گیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اب حالات میں مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ نیوز 18 اردو کے لیے جموں سے سمیر بھٹ کی رپورٹ۔ جموں میں آج رام مندر معاملے پر وی ایچ پی کی ریلی منعقد ہوئی۔ وی ایچ پی کے سینئر لیڈروں کے ساتھ ساتھ سادھو سنتوں نے اس میں شرکت کی۔ آل انڈیا سنت سمیتی مارگ درشک کے رکن جگت گرو رام آنند آچاریہ ہنس دیوا نے کہا کہ رام جنم بھومی پر ہی رام مندر تعمیر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اجلاس میں رام مندر کے لیے بل پیش کیا جانا چاہیے۔ وی ایچ پی کے رکن سوامی دنیش بھارتی نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ رام مندر کی تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کو 5 بچے پیدا کرنے چاہیے۔ ڈھانچہ توڑنے کے لیے ہم نے کسی کے آدیش کو نہیں لیا تھا۔ ایسے جب رام مندر کے نرمان کی ہمارا پورا جو کام ہے وہ ہوگا اور ہم وہاں چلیں گے اور رام مندر کے بھویہ نرمان کو سنکلپ کر کے اس کو پرارمبھ کریں گے۔ ستر چل رہا ہے تو ستر چلتے ہوئے بل تو لایا جا سکتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ بل ہو، چاہے وہ سرکاری بل ہو، چاہے کسی انیہ دل کا بل ہو، وہ بل آنا چاہیے سنسد میں، چلتے ہوئے ستر میں آنا چاہیے، جس سے پتا چل سکے کہ رام مندر کے پکش میں کون رہے گا اور رام مندر کے وپکش میں کون رہے گا۔ اب جب تک میرا وشو ہندو پریشد زندہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت دیش کو بانٹ نہیں سکتی، دیش کو کاٹ نہیں سکتی۔ 5 بچے پیدا کرے، پریواروں کو مضبوط کرنا ہے، شری رام جنم استھلی پر بھویہ مندر کا نرمان۔ اننت ناگ کے چٹی سنگھ پورہ میں آگ کی ایک واردات کے دوران ایک گروہ
गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचा। गुरुद्वारे के मुतसिल लंगर खाना भी जलकर तबाह हो गया है। एक एटीएम को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक छठी सिंहपुरा के गुरुद्वारे से अचानक आग नमदार हुई। इसके बाद न सिर्फ सिख तबके के लोग बल्कि मुस्लिम तबके से वाबस्ता लोग भी मदद के लिए पहुंचे। सिख तबके ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इल्जाम लगाया कि फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने की वजह से आग पर बरवक्त काबू नहीं पाया जा सका। लोगों ने महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। उधर डीसी अनंतनाग मोहम्मद यूनुस मलिक ने जाए वारदात का दौरा किया। उन्होंने लोगों को हर मुमकिन ताउन देने का यकीन दिलाया। 9:30 के करीब आग लगी है। इमीडिएटली हमने कांटेक्ट किया है फायर सर्विस कुआरी गांव से, जो यहाँ से एट द स्टोन थ्रो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन बदकिस्मती से 9:30 के बजाय 11:30 बजे वो यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज फायर सर्विस अथॉरिटी से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ डायरेक्टर फायर सर्विस से अपील करते हैं कि जो फायर स्टेशन कोरीगाम है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चला पूरी मुस्लिम बरादरी सिख बरादरी के साथ हेल्प करने के लिए यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे फायर सर्विस वैसे लेट आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी मुस्लिम बरादरी ने पूरा ताउन दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये भाई हैं। इनका कोई नुकसान है तो वो हमारा नुकसान है, हमारा कोई नुकसान है तो ये इनका नुकसान है। ये हमारे लिए हेल्प के लिए आते हैं और हम भी इसी तरह अपना दिल खोल के यहाँ पे हेल्प के लिए आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इनका जो एक गुरु ग्रंथ साहिब है वो शहीद हो गए, जिसके लिए हम भी दिल से बहुत अफसोस कर रहे हैं और हमें भी इस चीज़ का दुख है। हालिया बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद करने से मुसाफिरीन को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद का कहना है कि साबिक में भी यहां बर्फबारी हुई थी और पंचायती चुनाव के तनाजुर में इसको खोल दिया गया था, लेकिन अब इस सड़क को नहीं खोला जा रहा है। किशन गंगा प्रोजेक्ट की वजह से भी टनल में भी गाड़ियों की आमदरफ्त नहीं है और गुरेज के लोग बाकी दुनिया से कट कर रह गए हैं। मकामी लोगों ने यहां फजाई सर्विस दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया। यहाँ से जो बच्चे ट्यूशन के लिए या कोचिंग के लिए जाने थे श्रीनगर या बांडीपुरा या बिरून रियासत, वो भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। और वहाँ से भी जो यहाँ आने वाले थे तिलेल और गुरेज के लोग, वो भी बांडीपुरा और श्रीनगर में फंसे हुए हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है डिविजनल कमिश्नर साहब और डीसी साहब से कि पवन हैनस की सर्विस जो पिछले साल हमारे लिए चलाई गई थी वो जल्द अज जल्द रिज्यूम की जाए। रास्ता गुरेज और बांडीपुरा का बंद है, इसलिए कोई लोग यहाँ दरमंदा है, कोई लोग बांडीपुरा में, कोई लोग श्रीनगर में। इसलिए हमारा मुतालबा है डिविजनल कमिश्नर साहब से कि गुरेज के लिए कुछ हवाई सर्विस का कुछ इंतजाम किया जाए। द्रास में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर चल रही है। दुनिया के दूसरे सबसे सर्द तरीन मकाम पर गुज़श्ता रात -20.5 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। शदीद ठंड के सबब यहाँ पर मामूलात जिंदगी मुतासर हुई है। बाजारों में चहल पहल में भी कमी हो गई है। खाने पीने की कई अशिया बर्फ से जम गई हैं। वहीं नलों से भी पानी सप्लाई भी बंद है। इमारतें बर्फ से ढकी हुई हैं। जगह जगह आग लगाकर माहौल को गर्म करते हुए देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि चिल्ला कलान के शुरुआत में ही सर्दी की इतनी शदीद लहर है तो जनवरी में दर्जे हरारत में मजीद गिरावट होगी। हल्का सा भी इसका छिलका पूरा बुरी तरह जम गया है, तो इस साल बहुत ठंड है। ये देखिए चिकन भी बहुत जमा हुआ है। ऑटोमेटिकली पूरा सामान मच्छी हो, मीट हो, पानी हो, सारा फ्रीजिंग हो जाता है। अब देख सकते हैं, ये देखो ये नेचुरल बर्फ है, पूरा फ्रीजिंग होती है सिस्टम यहाँ। पटन के बुरुंज से ताल्लुक रखने वाले फारूक अहमद भट्ट के दोनों गुर्दे पिछले 6 सालों से खराब हैं। फारूक अहमद भट्ट जिंदगी और मौत की कशमकश के बीच मदद के तलबगार हैं। पेशा पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की ये रिपोर्ट। बुर्न पटन से ताल्लुक रखने वाले फारूक अहमद भट्ट के दोनों गुर्दे खराब हैं। 6 बरसों से वो इस बीमारी में मुब्तला है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए फारूक ने सब कुछ लुटा दिया। फारूक अहमद टीन के एक शेड में अपनी उम्र रसीदा वालिदा, अहलिया और 2 बच्चों के साथ गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। इस शेड के बगैर उनके पास कुछ नहीं बचा है। फारूक अहमद डायलिसिस के सहारे जिंदा है। इसके लिए उन्हें माहाना 30 से 40 हजार रुपए दरकार होते हैं। इस कसीर रकम के लिए इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। फारूक को बर्न में कायम बैतुल माल वक्तन फवक्तन मदद करता है, ताहम फारूक को इससे ज्यादा खर्च दरकार होता है। वो मदद के तलबगार हैं। बैतुल माल मदद करान मैं जमीन ते
लोग मकल बस दुशवाई आंदे खराब तम 2003 पे दुशवाई खराब लगान तकरीबन रोपिस 40-50 सास रेतस बैतुल माल मज के मदद करान तो मगर यूथ हेको न करित वो करान तमाम बायन अपील अगर अमिस मदद गस तो खुदायस निश अजर अमी। फारूक अहमद की बीमारी को देखकर उनकी वालिदा को रहा नहीं गया। वो अपने लख्त जिगर की जिंदगी बचाने के लिए अपना एक गुर्दा देने के लिए पहुंची। वो जब अस्पताल पहुंची तो उनके दिल की बीमारी का पता चला। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें गुर्दा न देने की सलाह दी। डॉक्टर निशन तमो दपन यह हार्ट पेशेंट यह कित पान यह अम सज हेक लगित न दिम बह पान बाकवट बह मे औलाद। फारूक की नम आंखें उसकी बेबसी और मुफलिसी की दास्तान बयान कर रहे हैं। वो अपने और अपने अहल खाना के मुस्तकबिल को लेकर काफी परेशान हैं। बस खुश बजार पान पान मारा यूता तंग रोजा बचन दोन मौजूद न रोजा न तमे तो मबूत। जरूरत इस बात की है कि फारूक अहमद की कीमती जान बचाने के लिए साहिब सरवत लोग सामने आए और इस जरूरतमंद खानदान की मदद करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बुरनपटन से मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। मानसर ट्रैक फेस्टिवल में हजारों ट्रैकर्स ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। 4 मुख्तलिफ इलाकों सुरनसार, महूरगढ़, मनवल और बारीगढ़ से ट्रैकर्स ने अपनी मुहिम शुरू की और सभी मानसर झील के पास जमा हुए। एडवेंचर सरगर्मियों और इको टूरिज्म को फरोग देने के मकसद से इस फेस्टिवल का इनकाद किया गया। इस मौके पर महकमे वाइल्ड लाइफ व जंगलात की जानिब से ट्रैकर्स की रहनुमाई की गई। महवरगढ़ में एसएसपी सांबा ने ट्रैकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टूरिस्ट स्पॉट है और इसके जो लोग आते हैं मानसर ही आते हैं। इसके अराउंड जो अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे आपका मोरगढ़ है, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर देने की कोशिश की जा रही है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस हुआ कि यहाँ से जो हम मतलब 12 किलोमीटर दूर गए मानसर तक और हमारा बहुत ही रोमांचक रहा ये सफ़र। सुपुर कस्बे में फुटपाथ पर दुकानदारों और छाबड़ी फरोशों की जानिब से सड़कों पर नाजायज तजावजात खड़े किए गए हैं। इसकी वजह से राहगीरों को चलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मसले को लेकर मुतल्लिका इंतजामिया ख्वाब गफलत में मसरूफ नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि छोटा लंदन कहला जाने वाला कस्बा सुपुर अब छाबड़ी फरोशों का गढ़ बनता जा रहा है। एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनिसिपल कमेटी सुपुर अनीस चौधरी ने कहा कि दीगर महकमों से तावन न मिलने के सबब नाजायज तजावजात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इन्हदामी कार्रवाई शुरू करके नाजायज तौर लगाए गए छाबड़ी फरोशों को हटाया जाएगा। वहीं ट्रेडर्स फेडरेशन सुपुर के नमुंतखब सदर काजी हशमतुल्लाह हाशमी ने पुलिस और सिविल इंतजामिया से मसले के हवाले से ताउन तलब किया। तो मैंने अपनी फील्ड स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी है, तो कल से हमारी ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी सोपोर टाउन में और आप पाओगे कुछ दिनों में अगर हमें सबका साथ मिलेगा तो आप देखोगे कि सोपोर टाउन फिर एक बार अपनी बहाली पे आएगा। और जितने भी हाकर्स हैं हमने उनके लिए एक आइडेंटिफाई जगह की है, हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो अपनी आइडेंटिफाई जगह में जाए, अदरवाइज सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें पुलिस का भी रोल बनता है, इसमें हमारी म्यूनिसिपलिटी का रोल बनता है, इसमें लोगों का रोल बनता है और वेंडर्स का भी रोल बनता है। जब तक हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, ये मामला और ये परेशानी जो सोपोर में है ये आज की नहीं है, ये पिछले कई सालों से ये परेशानी है और रोज बरोज ये बढ़ती जा रही है। ये तब तक हल नहीं हो सकती है जब तक न हम अनलेस एंड अंटिल वी जॉइन हैंड्स। पुंछ जिले के एलओसी पर वाक़ सलोत्री के सरारे पर प्राइमरी स्कूल में पीने के पानी की किल्लत है। इसकी वजह से तलबा और असातिज़ा को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से स्कूल में बनने वाला मिड डे मील भी मुतासर हो जाता है। तलबा का यह भी कहना था कि स्कूल की इमारत भी खस्ता हो चुकी है। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि सरहदी इलाके के इस स्कूल में पीने का पानी फौरी तौर फराहम किया जाए। खाना बनता है हर डेली, एक दिन दाल चावल और मीठे चावल भी बीच में बनते हैं। सिर्फ पानी की परेशानी है। बिल्डिंग हमारी हालात देखो, ये टूटी फूटी हुई है और पार से फायरिंग होती है, हमें अंदर छुपना पड़ता है।
यहाँ पे हमें मेन प्रॉब्लम है पानी की वजह से हमारा जो मिड डे मील सफर करता है कई दिन 2 महीने 3 महीने हमारा यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता, जिसकी वजह से हमें पानी दूर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। वादी कश्मीर में सदियों से सूफियाना मौसीकी काफी मकबूल है। ऐसा माना जाता है कि सूफियाना शायरी इंसानी जज्बात की एक अलग और बेहतरीन तरीके से अक्कासी करती है। पेश है समीउल्लाह की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में सूफियाना मौसीकी की तारीख काफी पुरानी है। ये दरहकीकत वस्ती एशिया की देन है। इसमें 4 से 7 या इससे ज्यादा अफराद का ग्रुप शामिल होता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। सूफियाना मौसीकी के मुख्तलिफ घराने इस संगीत की सदियों से हिफाजत किए हुए हैं। बजमी समा वन सूफियाना सूफियन सूफियानी गेवन। हमारी जबान, हमारा संगीत, सूफियाना संगीत, हम किस तरह जिंदगी की कौम की पहचान होती है, असल में दरअसल उसका कल्चर होता है। और एक सूफिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिनकी तालीम है मोहब्बत का, इखवत का, क्योंकि कोई मजहब किसी में मुनाफरत नहीं है, सिर्फ मोहब्बत का पैगाम है। अल्लाह एक है, मौला एक है, राम एक है, रहीम एक है। उसी की तालीम है इन बड़े बड़े बुजुर्गों की, खासकर मौला अली जनाब तलाबा जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी। सूफियाना महफिल में ग्रुप की क़यादत करने वाला शख्स संगीत की असल सतूर गाता है और आम तौर पर संतूर बजाया जाता है। सूफियाना मौसीकी में कश्मीरी सूफी शायरी और फारसी जबान की शायरी का मिलन एक अलग ही असर पैदा करता है। और जो कमाल भट्ट साहब नादिर भट्ट साहब साबिर भट्ट साहब सदा भट्ट साहब यम जन बड़ी बड़ी बार वस्ताद खुतबजात पान नमतल साहब अमिक शौकी। तो शुक्र अल्लाह ताला कुन तो बजरिए अल्लाह ताला यस अहमद बाग बसालत तो वनुक तान दुत अल्लाह ताला तार तो ये योकुन दी तार। यस अब्दुल सब ने वक्त पे चलान लकट बच्चे तम सात ये मल हेचन तुम पे ये सात बुजुर्ग गस ये बोजनान पे बह मारे मे पे पे पकड़ान। शुक्र अल्लाह ताला कुन बी तमिस उस्तादस कुन मोल तम हेचन बी थवन यह वत कथ यह सूफी आजम कित पकन मेन यार दोस्त कित पकनोक। तो शुक्र अल्लाह ताला कुन योतान जिंदगानी दोनों बारे गुलाम नबी नमदल साहबस मे पकनान तुम तो यार बोई दोस्त इंशाअल्लाह रहमान योतान 3 दहाई कबल मुख्तलिफ तकरीबात में सूफियाना गुलकारों को परफॉर्म करते देखना आम बात हुआ करती थी। ताहम अब सूफियाना मौसीकी का चलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तकरीबन 3 दहाइयों से जारी शोरिश और फोक म्यूजिक की बढ़ती मकबूलियत की वजह से सूफियाना मौसीकी अब कश्मीरी समाज और सकाफत से गायब होती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि कश्मीर के इस विरसे को आगे बढ़ाने के लिए इक़दामात किए जाएं। न्यूज़ 18 के लिए समीउल्लाह की रिपोर्ट।